Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and today we are going to start with our exercise 8.3 question number 2 of chapter 8. Okay? So our question number 2 is Kamla borrowed 26,400 rupees from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum, which is compounded yearly. Means your interest is compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा कितने इयर्स में 2 years and 4 months. आफ्टर 2 years and 4 months उसे कितना अमाउंट जो है वो पे करना रहेगा. तो हमें क्या गिवन है P is equal to 26,400 rupees हमें गिवन है एंड R हमें कितना गिवन है 15% पर एनम which is compounded yearly. ठीक है. Then we have given time period T. T is equal to 2 years and 4 months. 4 months को हम ईयर में कर सकते हैं. Okay, by dividing 12. Okay, so it becomes 2 years and 4 by 12 years. That is 2 integer, 4 ones are 4 and 4 threes are 12. So it is 2 integer 1 by 3 years. Clear? तो हमें P गिवन है, R गिवन है, T गिवन है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? अमाउंट फाइंड कर सकते हैं. अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? A is equal to P 1 plus R by 100 raised to the power. तो पहले ये हमने सॉल्व करना सीखा है. पहले हम क्या पार्ट ले लेंगे? होल पार्ट ले लेंगे. देन ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट रह रहा है उसे हम किस में दे देंगे? विथ R 1 by 3 multiply R divide by 100. क्लियर? ये हम पहले सीख चुके हैं. ओके, इसे सॉल्व कर देते हैं. A is equal to, what is your P? P is 26,400 and 1 plus R is 15 by 100 divide whole raised to the power 2 multiply 1 plus 1 by 3 multiply R. 1 by 3 multiply R means 1 by 3. What is your R? R is 15%. So 3 5s are 15. So 1 by 3 multiply R is nothing but 5. Clear? So हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 by 100. Clear? Then 26,400. इसे सॉल्व कर देते हैं. This is your 5 3s are 15 and 5 20. Okay, so 3 by 1 plus 3 by 20. Directly we write 23 by 20. Okay, 21 are 20 and 20 plus 3 is 23 by 20. So this is 23 by 20 whole square. Clear? Then multiply. ये भी कैंसिल हो रहा है. 5 ones are 5 and 25 is 100. So यहाँ पे क्या रिमेन रह रहा है? 1 plus 1 by 20. That is 21 are 20 and 20 plus 1 is 21 by 20. Okay. So this is 21 by 20. Clear? So we'll get over here is 26,400 multiplied 23 by 20. कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है. 23 by 20 multiply 21 by 20. Clear?
2 zeros से 2 zeros कैंसिल, देन 2 से डिवाइड कर दो इसे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4. अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12 एंड अगेन 2 6 जा 12. अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6. दिस इज डिवाइड बाय 10. अब 10 यहां पे रखते हैं ताकि सिर्फ हमें पॉइंट एडजस्ट करना है. ओके, सो किसका मल्टीप्लाई करना है आपको? 33 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 एंड डिवाइड बाय 10. ओके, 21 3 जा 63, so this is 3 and 6. 21 3 जा 63, 63 plus 6 is 69. 23 multiply 23, 23 square, 23 square is 529 divided by 10. Okay, then इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 366597 divided by 10. Okay, then point एडजस्ट कर दोगे आप, 1.36659.7 रुपीज. ये आपकी क्या आ गई? अमाउंट आ गई. यानी ये अमाउंट कमला को पे करनी रहेगी आफ्टर 2 years and 4 months. कमला have to pay 3665.9.7 rupees after 2 years and 4 months. Clear? Okay. Now our question number 3 is, Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest. Okay, ये अमाउंट उसने बोरो की सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरोस द सेम अमाउंट उसने भी बोरो की फॉर द सेम टाइम पीरियड और सेम टाइम पीरियड के लिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम विच इज कंपाउंडेड एन्युअली. ओके, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच? तो किसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट वाले यानी कि राधा को, फबीना को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा या राधा को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा? वो हमें फाइंड करना है. देन हमें बताना है कि किसको कितना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट केस तो हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट का और सेकंड केस है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का. ओके, सो केस 1 हम फाइंड करते हैं फर्स्ट, विच इज फॉर फबीना. ओके, फबीना के केस में P कितना है? P इज प्रिंसिपल कितना है? 12,500 रुपीज. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. ओके, पर एनम एंड T इज 3 years. देन सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? आपका फॉर्मूला पता है आपको? Yes, P multiply R multiply T divide by 100. What is P? Is 12,500 multiply R. R is your 12%. Multiply T, which is 3 years, and divide by 100. 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो जाएगा. पहले 125 multiply 3 कर देते हैं. 5 3 is 15. 1 3 2 are 6 plus 1 is 7 and 3 1 are 3. Multiply 12. 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 12 5 is 60. 6 over here. 12 7 is 84. 84 plus 6 is 90. 12 3 is 36. 36 plus 9 is 45. So इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा राधा को? 4,500 रुपीज. इतना इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा. तो फर्स्ट केस तो हमने निकाल लिया किसका? फबीना का. ओके, देन सेकंड केस क्या है आपका?
Case number 2 is for Radha. राधा के केस में सेम अमाउंट है, सेम प्रिंसिपल है, दैट इज 12,500 रुपीज और सेम टाइम पीरियड भी है, मींस टी आपका कितना रहेगा एज अबव विच इज 3 इयर्स। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम नहीं है, इसमें 12% थी, इसमें क्या है आपके 10%। देन आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो अमाउंट 10% आपका पर एनम है एंड कंपाउंडेड ईयरली है, ठीक है। कंपाउंडेड ईयरली है, तो ईयरली वाला हमें फॉर्मूला पता है, A = P1 + R by 100 raised to the power n. What is your P? P is 12,500. 1 plus 10 by 100 raised to the power 3. 0 से 0 कैंसल आउट, ओके, एंड रिमेनिंग क्या बचा आपका 12,500 1 plus 1 by 10 raised to the power 3. ओके, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? 1 plus 1 by 10 means 10 1 is 10 plus 1 is 11 by 10. So this is 11 by 10. So 12,500 11 by 10 raised to the power 3. Clear? So this is 12,500 multiply 11 by 10 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, सो 3 टाइम्स हम इसे लिख देते हैं। क्लियर? 2 zeros से 2 zeros कैंसिल, देन क्या रिमेन बचता है आपका 1 2 5 multiply 11 multiply 11 multiply 11 divide by 10, then 1 2 5 11 multiply 11 multiply 11 which is 11 cube which is 1331 divide by 10. Okay, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 166,375. क्लियर? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब एंड डिवाइड बाय 10, सो यू विल गेट 166, एक पॉइंट एडजस्ट कर देंगे 37.5 रुपीज। ये तो आपका क्या आया? अमाउंट आया। इस पे से सीआई का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? A minus P. सो दिस इज योर A एंड माइनस P कितना है? 12,500 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो 5 minus 0 is 5, 7 minus 0 is 7, 3 minus 0 is 3, 6 minus 5 is 1, and 6 minus 2 is 4. Okay, so you will get CI is 4,137.5 rupees. इतना इंटरेस्ट किसे पे करना रहेगा? इतना इंटरेस्ट किसे पे करना रहेगा? राधा को। और फबीना को कितना इंटरेस्ट पे करना रहेगा? 4,500. तो दोनों को कंपेयर करो, किसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना रहेगा? यस, फबीना को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना रहेगा। फबीना पेज मोर इंटरेस्ट। अब हमें सिर्फ ये नहीं बताना है, हमें ये बताना है बाय हाउ मच, कितना ज्यादा पे करना रहेगा, तो हमें डिफरेंस भी फाइंड करना है। सो डिफरेंस इनका निकालना पड़ेगा 4,500 माइनस 0.5। ओके, सो ये हो जाएगा 4, देन ये 10 9, ये 10 9 एंड ये 10 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2, 9 minus 3 is 6, 4 minus 1 is 2, that is 362.5 rupees. Okay,
इतना फबीना को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना रहेगा। कितने 362.50 वी कैन से 50 रुपीज। ओके